basic topic of current electricity, chapter number 3, experiment number 2. First, aim to find resistance of a given wire using meter bridge and has determined the resistivity, specific resistance of its material. Now, the apparatus required are a meter bridge, battery eliminator या cell, a galvanometer, a resistance wire, meter scale, connecting wire, piece of sandpaper. Now, theory. To find the unknown resistance of the given wire is X is equals to 100 minus L upon L into R, where X is the unknown resistance, R is the known resistance, L is the length of the wire, and 100 minus L given जो भी length पे जिस पे reflection मिलेगा उस पे find out this L. So specific resistance. Now the formula of the specific resistance R, capital R is equals to rho L by A. So R is equals to R into A upon L is equals to rho. What is the area of wire? The area of wire is known as the pi R square. So R is equals to pi R square rho L. रेडियस हम डायमीटर के फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जो डायमीटर होता है वो हाफ होता है, तो R कितना हो जाएगा 2D. तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी रेडियस सीधी गिवन है तो डायमीटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना. जो रेडियस होती है वो डायमीटर्स की हाफ होती है, तो हम इसको फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं. देयर इज अ सर्किट डायग्राम. दिस इज नोन एज अ मीटर ब्रिज. दिस apparatus is known as a meter bridge. Now the meter bridge A terminal are connected to the battery of positive terminal of the battery and negative terminal of the battery are connected in a key, and key are connected to the meter bridge B terminal. This is known as the B terminal. Okay. Now these two terminals are connected to the resistance box and these terminals are connected to the positive terminal of the galvanometer and negative terminal of the galvanometer are connected to the jockey, and there is an unknown resistance. Unknown resistance like nichrome wire ले लीजिए आप, हम इसका फाइंड आउट करेंगे कि उसका unknown resistance कितना होगा. देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो डियर स्टूडेंट, अब हम इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे इन apparatus. ओके, थैंक यू. नाउ डियर स्टूडेंट, सम मिस्टेक्स लिख लीजिए एक बार. रेडियस आपका होता है R is equals to rho L by A. R as it is, rho as it is, L. This is known as a pi R square. So there is known as a pi R square. R is equals to rho L upon pi. R is known as the radius. Radius is a half of diameter. This d by 2. यहाँ हो जाएगा d by 2 का whole square. So R is equals to rho L pi d square. ये हो जाएगा 4. ओके, हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R पाई d स्क्वायर अपॉन 4L. ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है फॉर्मूला. एंड दिस इज नोन एज अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर इज meter bridge is based on the Wheatstone principle, so that X upon R is equals to 100 minus L upon L. This is known as the principle of the Wheatstone bridge. तो principle of Wheatstone bridge ये बोलता है कि जब IG करंट जीरो होता है, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो दिखाता है, तब उनके रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है. तो दिस P upon Q is equals to R by S. So this is find out the unknown resistance of the given wire using the meter bridge. Now perform the practical. Student, to find the resistance of a given wire using meter bridge and hence determine the specific resistance. There is a apparatus. This is a battery eliminator. This battery eliminator is a switch on and off. There is a voltage regulator from 0 to 4, 6 volt, 8 volt, 10 volt and 10 and 12 volt, and this is known as a DC output.
This is a positive terminal of battery eliminator, and there is a negative terminal of the battery eliminator. So this is a resistance box. The resistance box is a combinations of resistance like 1, 2, 3, 2, 5, 100, 50, 20, 20, and there is an infinity for these. There is a one-way key. One-way key, this is known as a key, simple, switch on and off, one-way key. There is a galvanometer. Galvanometer, this is a division. This is a current measured by 20 microampere, sorry. And this is a division of 0 to 30. Okay. This is a galvanometer, is a DC moving coil galvanometer. There is a positive terminal of battery. This is positive terminal and negative terminal. And these apparatus is known as the meter bridge. Okay. These meter bridge, this is terminal of A terminal. This is known as A terminal. या तो आप इसको connect करिए या फिर इसको connect करिए, same है. And there is a terminal of B terminal. This is B terminal. This is known as a resistance wire. This is known as the unknown resistance. Unknown resistance. तो these types of resistance is known as a nichrome wire. ये हमारा nichrome wire का resistance है. हमको इसका specific resistance find out करना है. और इसकी जो length है वो 100 सेंटीमीटर है. That is 100 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी वायर को लिया हुआ 100 सेंटीमीटर. That is 1 मीटर ऑफ हमने वायर लिया हुआ. अब हम इसको कनेक्शन करना है डियर स्टूडेंट. तो अब सर्किट डायग्राम आप लोग के सामने है. बोर्ड पर मैंने आपको दिखाया भी था, उसमें आप देख लीजिए. दिस सर्किट डायग्राम. Circuit diagram, this is positive terminal of the battery are connected to the A terminal. These two terminals are connected to the resistance box. This is known as unknown resistance, non-resistance, and these two terminals are connected to the unknown resistance. This middle term is connected to the galvanometer, and they are connected to the jockey and key. So connection of these apparatus. Positive terminal of the battery are connected to the meter bridge of A terminal. Negative terminal of the battery are connected to the key, and these key connection are B terminal of the meter bridge. Okay, and there is connections of resistance box in these two terminals. It's known as resistance box, and there is a galvanometer. The galvanometer negative terminal are connected to the middle terms of the meter bridge, and positive terminal are connected to the jockey. This is known as the pen types of jockey to apply in these wire to find the length of the deflections. And there is a resistance wire. These two terminal are connected to the resistance wire. Now dear student, open a switch. स्विच को हम ओपन करेंगे. स्विच हमने ओपन किया तो आप सबसे पहले यदि आपका एपरेटस करेक्टेड है तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आपको अपोजिट डायरेक्शन में होगा. सो हम इस ए टर्मिनल पे देखते हैं तो आप देखिए डिफ्लेक्शन आपको बी टर्मिनल मतलब अपोजिट मिल रहा है. ठीक है, और जब हम इसको इस पर क्लिक करते हैं तो डिफ्लेक्शन आपको वहाँ दिखाई देता है. ठीक है, अपोजिट. अब इसको थोड़ा सा दूर से देखना. These A terminal are connected. The deflection are opposite direction. ठीक है, and these connection are connected to these and deflections are opposite direction, so that the connections of the meter bridge are correct. Now dear student, अब हमको reading measure करना है. So the observation table. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन लेंगे. ऑब्जर्वेशन में देखिए टेबल फ्रॉम द अननोन रेजिस्टेंस, सीरियल नंबर, रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स. आपको स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स से स्मॉल रेजिस्टेंस निकालना है. देन फिर लेंथ मेज़र करनी है. लेंथ के बाद फिर 100 माइनस एल, क्योंकि जो भी लेंथ, क्योंकि हमारा पूरा जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है. देन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. सो डियर स्टूडेंट, अब देखिए आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से 2 ओम का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. 2 ओम का रेजिस्टेंस जब हमने यहाँ से निकाला है तो हम देखते हैं अब यहाँ से डिफ्लेक्शन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है.
ओके, अब हम जॉकी को यहाँ से मूव करेंगे। तब तक मूव करना है जब तक कि डिफ्लेक्शंस आपका 0 ना आ जाए। ओके, तो हमने ये इसको मूव किया, ऐसे ले जा रहे हैं हम। अब आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर मूव कर रहा है। जिस पॉइंट पर आपका नल पॉइंट, दिस पॉइंट द डिफ्लेक्शन 0, ये दिस इज़ नॉन एज अ नल पॉइंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब हम स्केल की हेल्प से हम इसका लेंथ मेज़र करेंगे। सो द लेंथ इज़ 54। ये लेंथ हमारी कितनी आई है? 54 यहाँ पर। ओके, ये लेंथ हमारी कितनी आई बेटे? 54। अब हम यहाँ पर इसको रीडिंग मेंशन करेंगे। रीडिंग होगी हमारी, रेजिस्टेंस है हमारा 2 ओम, लेंथ है हमारी 54, 100 माइनस 54, हम इसको 100 माइनस 54 करेंगे तो हमारी आ जाएगी 46। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। R कितना है हमारा? 2 इंटू 100 माइनस एल आया है हमारा 46 डिवाइडेड बाय 54। ये हम मेज़र करके इसका मेज़रमेंट करेंगे। 4 मेज़र करनी है। 2 के बाद अब आप कितना ओम निकालेंगे? 3 ओम, फिर अगेन 4 ओम और फिर 5 ओम। ये हमको 5 रीडिंग लेनी है। चलिए नेक्स्ट, अब हमने 2 ओम पहले से हमने निकाल रखा था, 1 ओम हम 2 ओम ये और 1 ओम दीस, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 3। फिर नेक्स्ट फिर हम यही इस टाइप से डिफ्लेक्शन देखेंगे। डिफ्लेक्शन जब हम यहाँ से देखते हैं तो आपको डिफ्लेक्शन, अब चलेंगे इसको लेकर हम फिर से, हमने फिर मूव किया। अब हम लेंथ देख रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर आर डिफ्लेक्ट फ्रॉम 0, then length is 59.5. This length is 59.5. This length is 59.5. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 ओम एंड 55 सेंटीमीटर। लेंथ हमारी सेंटीमीटर में, हम इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60, मतलब 41 सेंटीमीटर। सिमिलरली 3 इंटू 41 अपॉन 59, इसका कैलकुलेशन हम निकालेंगे। सिमिलरली आपको अब किसके लिए करना है? आपने 4 ओम के लिए, तो आपने 2 ओम निकाला हुआ है, देन अगेन 2 ओम का हम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालेंगे। 4 ओम हमने निकाल लिया है। फिर हम डिफ्लेक्शन देखते हैं। डिफ्लेक्शन ज़रूरी नहीं है कि आप इधर से लो, आप डिफ्लेक्शन यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ से लेते हैं डिफ्लेक्शन तो स्केल आपकी नीचे वाली आएगी। ओके, लेकिन हम लेंथ अब यहाँ से मेज़र कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन आ रहा है हमारा। अब उसके बाद देखिए डिफ्लेक्शन, ये अगेन बार बार डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब हम लेंथ मेज़र करेंगे। लेंथ हमारी आएगी आर डिफ्लेक्शन मूव, गैल्वेनोमीटर आर मूव, अगेन गैल्वेनोमीटर आर डिफ्लेक्शन टू 0। दिस पॉइंट इज़ नॉन एज अ नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन से आ रहा है हमारा, हम मेज़र करेंगे नल डिफ्लेक्शन 61। नल डिफ्लेक्शन हमारा कितने पे आ रहा है? 61। ओके, तो ये हमारी हो गई है 61। हम इसको मेज़र कर लेंगे नाउ 61, तो ये आपकी हो जाएगी 39 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन हमको फिर निकालना है। अब हमें फाइंड आउट करना है 5 ओम, तो हम 2 ओम का लगा देंगे और हमको इनको रेजिस्टेंस की जो की है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स की, इनको हमको टाइट ही रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ से
5 ओम का निकालते हैं। जब हम 5 ओम का फाइंड आउट करते हैं तो 5 ओम पर रेजिस्टेंस एक्स, ये हमारा होगा रिफ्लेक्शंस आर, रिफ्लेक्शन है हमारा 63, ये रिफ्लेक्शन शो हो रहा है हमारा 63। ओके, तो 5 ओम के लिए हम यहाँ लिख देंगे 63 और ये हमारा आ जाएगा 37 सेंटीमीटर। अगेन हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज, लीस्ट काउंट हम क्लास 11th में फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट ही इसका निकाल लेंगे कि इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो हमारा 0 पॉइंट। अब हमको निकालना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए आप x जो मीन निकालेंगे, यहाँ से जो आपने x निकाला है x1, x2, x3, x4, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x1 + x2 + x3, ये आप निकाल लेंगे। कैलकुलेशंस ऑफ d मतलब डायमीटर, तो हम इस वायर का जो डायमीटर है वो स्क्रू गेज की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। इसका स्क्रू गेज की हेल्प से जो डायमीटर आया है हमारा वो 0.01 सेंटीमीटर है। ये हमें याद भी रखना है क्योंकि हम इसको 11th में फाइंड आउट कर चुके हैं। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, x मीन आपके पास है, पाई की वैल्यू आपके पास है, d आपने 0.01 निकाल लिया है, 4 आपके पास है, l कितनी ली है हमने 100 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हमको पता है कि हमने यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस वायर यूज़ किया है, दिस वायर इज़ नोन एज ए निक्रोम वायर। तो हमको निक्रोम वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 100 होता है। ये बुक में आपको प्रैक्टिकल बुक में पीछे दिया हुआ है, तो स्टूडेंट आपको वैसे याद भी रखना चाहिए। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम वायर होता है 100 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आना चाहिए 100 × 10⁻8 ओम मीटर। हमारा आंसर यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद आपको रिज़ल्ट लिखना है, प्रिकॉशंस लिखना है एंड सोर्स ऑफ